बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपकी होस्ट सादिया सत्ती और आज के SDTV बुलेटिन में मैं आपके साथ लेके आई हूं डिफरेंट स्टोरीज़, जिसमें हम आज बात करेंगे मुल्क में होने वाली मौसमियाती तब्दीलियों के बारे में, क्लीन ग्रीन इस्लामाबाद के बारे में और हमारा फोकस होगा ग्रीन एनर्जी कॉकस पर। इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करूंगी कोरोना किस तरह से मुल्क की मौसमी सिचुएशन को टारगेट कर रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस किस तरह माहौल को साफ बनाया जा सकता है। इस सिलसिले में आइए देखते हैं इकोसिस्टम रेस्टोरेशन पे SDTV की एक रिपोर्ट। मौसमियाती तब्दीलियों को मद्देनजर रखते हुए हम इस्लामाबाद को कैसे क्लीन, ग्रीन और साफ बना सकते हैं, इस बारे में आइए हम आपके साथ शेयर करते हैं एक रिपोर्ट। मुल्क में बढ़ती हुई कोरोना के बायस पाकिस्तान में लोग 40% से ज़्यादा गुर्बत का शिकार हो गए हैं। कोविड किस तरह से हमारे तालीम के निज़ाम को, सेहत के निज़ाम को और माशी निज़ाम को मुतासिर कर रहा है, आइए उस पर नज़र डालते हैं। Similarly, about 40% more people have gone down the poverty line, below poverty line. And the government is not in a position financially to provide them financial aid or assistance. Many people are losing their jobs. So therefore, in our country, in Pakistan, industry is affected, agriculture is affected, because then growth will be affected if people cannot really afford to. Because with this, the inflation has come up. There is unemployment, more unemployment. That has added to the miseries of the people. And when people are not healthy, they are not financially well off, then they cannot really be the part of the engine of the growth. And that is a big loss. So therefore, while the government of Pakistan is trying its best to really cope up with the situation and public is cooperating, we pray and hope that we control this pandemic. The worst hit is again education, because the children are out of school, and unless and Pakistan is not that advanced that you will have people will work on the internet system and they cannot, online education is not at all feasible in countries like Pakistan, because some are well developed areas but many far flung areas
like Balochistan, like our ex-tribal belt, interior of Sindh and all that, and even in interior of Pakistan, the rural Punjab area, their children are not well aware to really get their proper education online, and their parents are not also very educated to help them to get that education. So these are the impacts, and I hope the nation, by the grace of Allah, we expect will stand up to fight this challenge and help the government, and the government will leave no stone unturned really to minimize these difficulties of the people. Big challenges come, but then the towering leadership really faces those challenges and overcomes that. And we hope and pray Pakistan leadership will also stand up and face this challenge along with the entire Pakistani nation. United Nations plan of Sustainable Development Goals was a very good plan. That was to help poor countries and third world countries to fix their goals and then try to achieve those goals within a stipulated time up to 2030. But now with this pandemic, there has been a lot of adverse impact on the achievement of these goals. And therefore, I think United Nations may have to reconsider as to whether this time frame is realistic or no, because the countries must try. They must try to meet these goals within the stipulated time frame. But I feel that because still we don't see light at the end of the tunnel. There is a vaccine of all types. Some people say it is 90% effective, others say it is 60%, some say it is 50%. And those people who are getting vaccinated, even those are being exposed to COVID attacks. So there is an uncertain situation. So therefore, I feel that this goal of 2030, with those 19 goals or 17 goals which have been fixed, I don't think so that poor countries who are coping up, who are fighting COVID-19 and trying to mitigate the difficulties will be able to meet these goals. जी नाज़रीन, तो अब हम आपके साथ शेयर करते हैं आज की आखिरी रिपोर्ट। आइए देखते हैं SDPI की ग्रीन एनर्जी कॉकस के बारे में एक रिपोर्ट। ऑल सॉर्ट ऑफ सपोर्ट जो है वो SDPI प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। पार्लियामेंटेरियंस का ये अपना इनिशिएटिव होगा कि स्पेसिफिकली क्लीन एनर्जी पे वो एक अपना कॉकस जो है वो पार्लियामेंट में तश्कील दें, जो कि सेनेट में भी हो, नेशनल असेंबली में भी हो। यहाँ पे आप एक पार्लियामेंटेरियंस का एक फोरम बनाने की तजवीज़ लेकर के आए, और अगर ये बनता है विद एक्शन ओरिएंटेड प्लान कि आपके सामने हो, ये हैं लंबा चौड़ा, इसको आगे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपने गोल्स अचीव करें, डेस्टिनेशन सेट करें, और उसके बीच में मीटिंग्स बहुत होती हैं, लेकिन अगर हम एक्शन प्लान सामने रखते हैं कि हमने पहुंचना किधर है, क्या चीज़ अचीव करनी है, तो इससे बेहतरीन आइडिया हो ही नहीं सकता। ब्रेन्स हैं ज़बरदस्त, काम करना चाहते हैं, और अगर ऐसा कोई फोरम बन जाता है जो आप बनाने की तजवीज़ रखते हैं, तो इट कैन डू अ रिमार्केबल जॉब। अगर एक स्पेशल फोकस कॉकस बन जाए जिसमें पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो एक ब्रिज बने बिटवीन द पॉलिसी मेकिंग and the implementation and execution of the policy and support climate change ministry on it and the government on it. जो मसाइल दुनिया को क्लाइमेट चेंज के एंगल से लाहक है, तो ये एक सोल्यूशन है। जो क्लाइमेट चेंज को दरपेश मसाइल है, उस पर मैं समझती हूँ कि ये बड़ा खुश आइन इकदाम है। अभी जहाँ पर बात आती है कॉकस की, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव अबाउट द क्लीन एनर्जी एंड द ट्रांजिशन। पार्लियामेंट्री कॉकस ज़रूरी है, एंड मेरा अपना ये ख्याल है कि इट शुड बी सेनेट और पार्लियामेंट दोनों का जॉइंट कॉकस होना चाहिए।
जिस तरह से सुलेरी साहब ने यहाँ पर कहा है कि हमें ये सोचना है कि हम यहाँ क्या करके गए हैं, तो दिस इज़ द थिंग जो हम चाहते हैं कि हम अपनी जनरेशन्स के लिए करके जाएं। वैसे तो पार्लियामेंट में भी हम ये काम कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे जो है ना वो सच इतनी इसको शॉर्ट हमने कर दिया है, क्योंकि जो इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं और जिनका ये काम है उसी को साथ ले फोकस करेंगे। वो ये फोकस्ड होगा एक कॉकस इसी एनर्जी ट्रांजिशन पे। बहुत अच्छी बात है अगर बन सके और हम सब इकट्ठे भी हो जाएं, और ये भी एक तरह का बहुत प्रोडक्टिव अगर प्लेटफॉर्म हो। मुबारकबाद दूंगा डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब को कि वो लेजेंड पर्सन है पाकिस्तान में, जो SDPI के तहत तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे काम कर रहे हैं। इनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत पाकिस्तान के नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है और हम इनके साथ हैं। हम चाहते हैं कि ये ऑलरेडी टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं हमारे SDG सेक्रेटरीट को भी और पार्लियामेंटेरियंस को भी। कमिटमेंट नज़र आई है तमाम पार्लियामेंटेरियंस की, जैसे आपने खुद भी देखा है कि एवरीवन सेड कि हम बातें नहीं सिर्फ करना चाहते, एवरीबॉडी वांटेड टू डू सम एक्शन, एवरीबॉडी वांटेड टू पुट देयर वर्ड्स इनटू सर्टेन काइंड ऑफ ए कॉन्क्रीट एक्शन। और कोई एक्शन प्लान मांग रहे थे, हमसे कह रहे थे कि हमें बताएं कि अब आगे कैसे जाना चाहिए और इस सारे इनिशिएटिव को इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे करना चाहिए। आज का SDTV बुलेटिन देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें इंतज़ार रहेगा आपकी वैल्यूएबल सजेशंस एंड फीडबैक।